Gudachari, a regional super duper hit film. And from that film to 2022, jab itni sari back-to-back hits the end, now G2, the most awaited pan-Indian film. What do you have to say about this journey of yours? Yeah, I feel very blessed. तो ये जिन 6 हिट की बात कर रहे हैं उनमें से 5 तो तेलुगु फिल्म के हैं, but the sixth one was major, and I'm so glad that I was so loved over here, overseas, everywhere that I go. The kind of respect I get for major is extraordinary. तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार हम हमेशा से इंडियन फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, बस बात ये था कि हम मुंबई में नहीं हैदराबाद में बना रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने इंडियन फिल्म्स को यहाँ पे अभी लेके आए. And you've always been pretty vocal about this कि भाई वो Indian films होनी चाहिए, pan Indian films जिनकी बात हम करते हैं. Yeah, I truly believe that we're Indian first. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे जगह पे लॉन्च करें जहाँ पर लोगों को पता चले कि हम भी इंडियन फिल्म्स ही बना. Right, absolutely. जोरदार तालियां. Come on, ladies and gentlemen. Vishwa sir, People Media Factory. I've heard कि 20 productions तो अभी already हैं जो ऐसा pipeline में हैं, और शुरुआत ये इससे हुई है इस साल की. G2. What do you have to say about this journey of your production studio and of course your love for Indian films and all of us? So basically, I run an IT business. And when I come to movies, people always ask, hey, why you are getting into movies? So Shesh made us very proud with giving us the Gudachari in very early days. And we did Gudachari together with Anil and Abhishek. Yes. And now we are looking at G2 to be starting with a pan-India movie, launch as a pan-India movie, and so start this G2 G series and take it to a pan world. Wow. Now we are talking pan world, ladies and gentlemen. Of course, a visionary. Thank you so much, sir, for sharing that with us. Agarwal साहब, आपके लिए सवाल मेरा ये है that कश्मीर फाइल्स की बात करें, कार्तिकेय 2 जो सर के साथ आपने दी है उसकी बात करें. These are the movies जिनको लेके पहले बहुत हल्ला नहीं मचता है. Content driven cinema is this. You are this mascot of content driven cinema, I would say. Because फिल्म आती है, उसके बाद वो इतनी बड़ी हो जाती है that everybody is like, wow, क्या बना दिया. What do you have to say on that? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये हंगामा कर रहे हैं तो कुछ गलत होगा. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा सर. नहीं, कंटेंट मैं ये बिलीव करूँगा कि सिनेमा है, उसको जो प्रेम से बनाएगा वो सबको आदर मिलेगा. और सिनेमा साउथ नॉर्थ नहीं होता. बिल्कुल. वी आर एन इंडियन फिल्म मेकर्स, मतलब इंडियन सिनेमा है जी. मैं वो अपन को वही रूट मेरा इंडियन सिनेमा का है, तो इंडियन सिनेमा के बारे में. Amazing. Thank you so much, sir, for sharing that. Anil sir, this one's for you. Please मुझे बताएं, आप भी you're very passionate about films, and मुझे ऐसा पता लगा है that you definitely know कि audience को क्या चाहिए. वो नब्ज पकड़ना is the word here or the phrase here. What do you have to say about this collaboration when we have such brilliant people on stage? और आप इनके साथ जुड़े हैं इस फिल्म को बनाने के लिए. First of all, G2 is an answer for everything, whatever you told. And when such dream people come together, people who have dreams, with a hero who had major dreams, major dreams. And we'll soon we'll make it to a major series. Wow. Announcement पे announcement हो रहे हैं, इसे कहते हैं शुरुआत. सर just एक off the record पूछना चाहता हूँ, किसी को नहीं बताएंगे. कार्तिकेय 2, G2, कुछ क्या सर 2 नंबर से कुछ आएंगे लकीर? किसी को नहीं बताएंगे, आप मेरे को बता दो अलग से. है? वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हिट हमें देनी है, ब्लॉकबस्टर्स हमें देनी है. Alright, so director साहब, this one's for you. First of all, congratulations for this. Whatever we saw on the big screen looks fantabulous. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, come on, for director साहब here. And विनय भाई, please मेरे को ये बोलिए that we've seen a lot of things, we've heard a lot of things. Major, उससे पहले Gudachari. You've been an important part of both these films. So here, now the journey has culminated into something beautiful with this amazing team. How do you see this journey of yours? First of all, I thank everyone for coming here and taking part of this. I don't know how much I can say right now, but I think this is going to be an epic, immersive experience. Whoa. That's something I can say. And Gudachari is a world which has its unique essence, and we want to push the boundaries and make this franchise universal and get to all parts of the country. Right. Yeah. Thank you so much for sharing that. Pan India, Pan World, sir ने बता ही दिया है. So here is the dream team of G2, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे. And I know you have a lot of. I really like to listen to it actually.
शेष आपकी जो भी फिल्में होती हैं, जैसे हमने ये भी देखा, क्वाइट आप में स्वैग है, क्वाइट स्टाइलाइज हुआ एक्चुअली आप भी तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितने कॉम्प्लीमेंट उस पर भी मिलते हैं? और हम तो बात कर रहे हैं पैन इंडिया की, बट जब ये फिल्म देख रहे हैं तो हम तो पैन वर्ल्ड मतलब तो उस पर भी कितना ध्यान दिया था कि एक इंटरनेशनल स्टाइल की फिल्म एक्चुअली ये लग रही है। डेफिनेटली पैन इंडिया तो है ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पैन वर्ल्ड आल्सो। नहीं, ये बहुत ही बड़ा गोल है फॉर G2। इट्स इफ वी सेट असाइड द वर्ड्स, मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, पैन कुछ भी, पैन फ्राई भी हो जाए, पॉइंट ये है कि आई थिंक हम चाहते हैं कि ये फिल्म इस क्वालिटी के बनाया जाए कि वी वांट टू बी एबल टू टेक इट एनीवेयर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो तेलुगु लोगों के लिए ठीक है या देशियों के लिए ठीक है या इंडियंस के लिए ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी लोग देखें, इसको एंजॉय करें। सो वी आर प्लानिंग इट इन अ वे, एंड द काइंड ऑफ, आई मीन दिस गाय विनय, ही इज़ द एडिटर ऑफ मेजर, ही एडिटेड मेजर, and the kind of gravitas and skill he brings, frankly, the director of Major, he directed part 1 of this series. Seshi, me, हम सब, भले हमने ये G series को create किया है, हम ज़्यादा इस पे विश्वास करते हैं। हम बोलते हैं यार तू बोलेगा तो हाँ, हम भी मानते हैं कि ये अच्छा है। Like this is the kind of skill set we're talking about. हम थोड़े silent किस्म के लोग हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं, बट आई थिंक स्वैग उसी में है कि हम काम पे ध्यान रखें एंड दिखाएं कि हम क्या बना रहे हैं। Yeah, my question to you, like as he was talking about pressure, like तो आप पर definitely everything निर्भर होता है, in fact, like everyone, and how are you going to live this thing actually? To be honest, actually, the process has always been the same for us, be it Gudachari or Major or G2. For Gudachari, the budget is very less, our ambition is something else. For Major, our budgets are different, our ambitions are different. With G2, our ambitions are again over us. So the process is the same, getting roasted in the pressure cooker, that's it. I think हमारा ambition हमेशा हमारे बजट से ज़्यादा होता है। भले इस बार 2 0 ऐड हो गए बजट में, ambition उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हाय शेष, आशीष here, इधर। भाई how are you? कैसे हो आप? शेष, पहले तो congratulations for giving such a crisp and sexy teaser, और लास्ट ईयर आपने मेजर हिट्स दिए, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे बड़ी बात कि जैसे नितिन बोल रहे थे कि जैसे गुडाचारी की बात आई तो रीजनल सिनेमा का टैग था, लेकिन आज 1 साल बाद जब आप देख रहे हो तो आज आपका नाम इस फिल्म से जुड़ा है, अभिषेक का इस फिल्म से नाम जुड़ा है, इसको मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म बोला जा रहा है। इस 1 साल में आए बदलाव को आप कैसे देखते हो? और आपको और अभिषेक को ये बोलना चाहूँगा, आप तो वो पारस पत्थर हो गए, कोई जिस चीज़ पे छू दे रहे हो वो फिर अलग ही लेवल पे पहुँच जा रही है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे चूज करते हो? हेलो, अब चूज मतलब मेरा सिनेमा खाली एक ही दिमाग में रखकर, और इंडियन सिनेमा मतलब भारत का सिनेमा, ये ऐसा नहीं कि साउथ को ही अच्छा लगे या नॉर्थ को ही अच्छा लगे, वहाँ अच्छा लगे। मूवी बनाने से मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के साथ ही मूवी बनाओ या किसी के साथ, मतलब जो भी मूवी बनाओ स्टोरी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट रहेगा तो इंडियन सिनेमा कभी भी चलेगा, ये मेरा एक मानना है। और आप लोगों ने ऑलरेडी कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और काफ़ी मतलब हिंदी में भी जो मैं लेके आया हूँ उसको आदर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो कंटेंट रहेगा तो कंटेंट को चूज़ करना जो इंडियन मतलब घर घर में जाके जो हर बच्चा देख सके, बच्चा सब्जेक्ट देख सके, वैसी मूवी बनाने के भाई आई थिंक हमारा बस यही है कि इट्स टॉम हैंक्स, ही सेड इट इन एन इंटरव्यू, सेड अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्लॉप फिल्म्स पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बोला आई विश आई न्यू दिस टू शैल पास। तो मैं हिट या फ्लॉप कोई भी चीज़ में बहुत टेम्परेरी रखता हूँ दिमाग में। मेरा बस भले वो कंपटीशन हो, भले वो कुछ भी हो, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन येस्टरडे बस। और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि यार चल, आई मीन इट्स ईजी फॉर मी टू से ऑल्सो बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस पिछले 6-7 साल में एवरी फिल्म आई हैव डन हैज़ डन वेल। एवरी प्रोड्यूसर हियर इज समबडी आई एम वर्किंग विद द सेकेंड टाइम और द थर्ड टाइम। ऐसा नहीं है कि पहली बार काम कर रहे हैं हम साथ में। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं भी वो ट्रस्ट को आई टेक इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो बस आगे बढ़ना है यार, और बड़ा बनाना है और आगे बढ़ना है बस। मेरा सवाल भी इसी से कनेक्टेड है, आपसे भी और अभिषेक जी और डायरेक्टर से भी है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट
बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में। लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है और भी पहले टाइगर जिंदा है और बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज़ करने की वजह उस जॉनर में? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में दो किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं। यू नो, वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ जो रियलिज्म में राजी जैसे फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स बहुत ही रियलिस्टिक, एंड देन द अदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, यू नो, लाइक पठान एंड वॉर एंड ऑल दैट. I think the G series is something else. It's I would say it's a decorated reality. मतलब realistic है but काफ़ी decorated है and it's very edgy. तो शायद मैं ये कहूँगा कि the standard of it is not so much about making it more commercial. The standard of it is making it more cooler. You know, एक style दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चला, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है, यू नो. सो of your age, you know, basically today, like in terms of action, you know, that OTT action is it, do you think it's on the wane, and it's only when an actor is willing to put his body on the line, you know, that's the kind of action which is going to grip. Like even in this teaser which we saw, you know, the background score, you know, it's, you said it's cool and I found it world class. So is that the way to go, you know, and an action hero has to put his body on his or her body on the line? I think you have to put your heart on the line भाई. You know, दिल से काम करोगे तो ही चलेगा. You know, I think वो ज़माना गया कि हम बॉडी डबल्स के साथ काम करें, बिकॉज लोग आजकल वो समझ चुके हैं कि हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है VFX में, वो समझ चुके हैं. तो अब जो बंदा असल में करेगा कोई चीज़, जो बंदा प्रॉपर एक्शन करेगा, जो बंदा कोई भी चीज़ इफ़ ही शोज इट इन एन ऑथेंटिक वे, ऑथेंटिसिटी तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते ना. सो द गोल इज टू बी ऑथेंटिक. So glad you said that. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. इंडियन सिनेमा कोई भी हो, एक्ट्रेस के बिना पूरा नहीं होता. तो आपके एक्टर कहाँ है, एक्ट्रेस कहाँ है, एक. और दूसरा ये है कि थ्रिलर है जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसमें एक सिजलिंग, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग होनी चाहिए. तो उस बारे में कुछ बताएं. होनी चाहिए तो होगी, शायद आप बाद में रिवील करेंगे, उसके बारे में कोई बताएगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यू नो हमारी कहानी को सुन लें, फिर आप सिजलिंग और के बारे में पूछें. बट no, we will be doing the casting. The thing is, we have just announced the pre-vision कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Now it's going to take us 1.5 year to bring this film to you. इस प्रोसेस में हम अलग अलग प्रेस जंकेट्स और इवेंट्स में हमारे कास्टिंग डिसीजंस, नए नए कंटेंट्स को रिलीज़ करेंगे. बिकॉज ये पहली बार है कि एक ऑल इंडियन फिल्म जो तेलुगु में बनाया जा रहा है वो मुंबई में लॉन्च हो रहा है. ये पहली बार है बिकॉज हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये हर किसी के लिए बना रहे हैं. Tomorrow we have another launch in Hyderabad for the same film. But will there be any chance of you will be casting any of the Hindi film now? नहीं, वो तो नॉर्मल है. लॉट ऑफ हिंदी एक्ट्रेसेस वर्क इन आवर फिल्म्स नो. वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. अगर मैं स्पेशली अनाउंस करूँगा तो सब मेरे तेलुगु फैंस सब मुझे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे यार हर तेलुगु पिक्चर में तो हिंदी वाले आगे काम करती हैं, आप क्या नया अनाउंस कर रहे हैं. सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू कास्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल. शेष यहाँ पर आपके लेफ्ट में. हाय शेष, मुझे याद है जब हिट फर्स्ट केस आई थी, तो जब वो हिंदी में बहुत पसंद की गई थी, जब राजकुमार ने किया था, आपने एक लाइव के दौरान कहा था कि हमने हिट फर्स्ट केस को इसलिए हिंदी में नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि कौन देखने आएगा, हिंदी ऑडियंस सिनेमा घरों में हमें कहाँ देखने आएगी. लेकिन अब लगता है मेजर के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हिंदी ऑडियंस के बीच स्पेशली. Yeah, definitely. I mean, you know, by God's grace, 2022 was a major hit for me, so that was good. मैं खुद एक नया एडिशन था. I came into the hit franchise after राजकुमार राव because part 1 was with another Telugu actor. तो फिर राजकुमार राव है और फिर मैं वाइजैक केस में ऐड हुआ था. So I think it is going to be a multi-city franchise hit. तो मैं ये बस कहूँगा कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है ऑफ दिस टीम, यू नो द काइंड ऑफ डायरेक्टोरियल टैलेंट वी हैव,
द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स वी हैव जो कोई भी फिल्म को कहीं भी लेके जा सकते हैं. दैट इज़ देयर एबिलिटी. You know, you name it, every big film that's happening right now in South India, unannounced or announced, is happening between these three guys kahin na kahin. So जिस तरह का team है, we have the ability to bring the film anywhere and bring audiences from anywhere to the film.